بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ اپیل کہاں لائے کرے گی, 45A لائے کرے گی ٹو دا کمشنر, اپیل جائے گی یا ٹو بیفور دا ٹرائبونل جائے گی. جو پرانے لا کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو ڈی سی ہوتا تھا اس کی اپیل لائی کرتی تھی بیفور دا کمشنر اپیل, کیونکہ ڈی سی جو ہے کمشنر اپیل سے لوور اتھارٹی ہوتی تھی, اور جو ایڈیشنل کمشنر کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے آلموسٹ پیرلل کنسیڈر ہوتا تھا. تو اپیل سسٹم میں یہ ہے کہ جسٹس دینا ہے تو برابر کے پاس اپیل نہیں لگنی چاہیے, تو اس لیے وہ ڈائریکٹ ٹرائبونل کے پاس تھی. لیکن جب سے یہ 2001 والا آرڈیننس آیا ہے تو اس میں تمام اپیل جو ہے انکم ٹیکس کے مطابق جتنا بھی کوئی بھی پاس کرے گا تو اس کی اپیل جو ہے کمشنر اپیل کے پاس جائے گی اور پھر ٹرائبونل میں جائے گی, اور اس طرح آنورڈ جائے گی. ایون ایڈیشنل کمشنر بھی 122(5) لگائے گا تو وہ بھی ادھر سے اس روٹ سے جائے گی. لیکن جہاں تک سیل ٹیکس لا کا تعلق ہے, سیل ٹیکس میں جو اپیل ہوتی ہے لوور دین دا کیڈر آف کمشنر, یا وہ والی جو اپیلز ہیں وہ ساری جاتی ہیں بیفور دا کمشنر اپیلز, اور جو ہے کمشنر کا آرڈر ہوگا وہ 46 کے تحت اینی آرڈر بائی دا کمشنر وہ جاتی ہے ٹو دا ٹرائبونل. اب جو ان کی ججمنٹ آئی تھی اکرم صاحب کی, اس میں بیسیکلی لکھا ہوا ہے اینی سیل ٹیکس اتھارٹی, تو اینی سیل ٹیکس اتھارٹی میں کمشنر بھی انکلوڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے انٹرپریٹ کیا تھا کہ وہ آپ اپیل جو ہے کمشنر اپیل کے پاس فائل کریں گے, کیونکہ اب آپ کے پاس دو آپشن اویلیبل ہوگی. آپ چاہیں تو اس ججمنٹ کی روح سے یا سیکشن کو دونوں کو انٹرپریٹ کریں. اگر ہم تو کوئی بھی انکم ٹیکس اتھارٹی کوئی آرڈر پاس کرے تو آپ کمشنر اپیل کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, کمشنر اپیل کے پاس جائیں گے, پھر کمشنر اپیل کے خلاف پھر آپ ٹربیونل میں جا سکتے ہیں. یہ روٹ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. دوسرا ہے 46 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آرڈر کمشنر کا ہوگا تو وہ آپ ڈائریکٹ جائیں گے ٹرائبونل میں. اب آپ ٹرائبونل میں بھی جا سکتے ہیں. لا نے جہاں کہیں لا کوئی سیکشن آپ کو دو آپشن, دو ایگزمپشنیں, دو دے دے, تو دو ریمیڈی آپ اپیل دے دے تو آپ اینی ون روٹ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو یوزولی اسٹینڈرڈ روٹ تھا کہ وہ یہ تھا کہ کمشنر جو جوڈیشل سسٹم میں جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کمشنر جب کوئی آرڈر کا پاس کرے وہ کمشنر اپیل بھی اسی کیڈر کا ہوتا ہے, اسی لیول کا ہوتا ہے. وہاں کوئی جسٹیفائی نہیں بنتی کہ وہاں اپیل فائل ہو. اس سے اپیل کا مطلب ہوتا ہے کسی ہائر اتھارٹی کے پاس جانا, تاکہ آپ کے جو گریوینسز ہیں جو آپ کے آرڈر سے ارائز ہو رہے ہیں وہ کوئی ہائر اتھارٹی سن کے وہ دیکھے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. برابر کی پیرلل کیڈر کی اتھارٹی ہوگی تو وہ جسٹس کے وہ اسی طرح کی بھی نہیں آئے گی, جسٹس کے کم چانسز ہیں. اس لیے جوڈیشل پرپز کے لیے تو ایپلنٹ ہائر اتھارٹی ہونی چاہیے. تو اس پرپز کے لیے لیجسلیٹر نے سیل ٹیکس ایکٹ میں اس کے لیے 46 سیکشن میں ٹرائبونل میں ڈائریکٹ دی ہوئی ہے. ویسے بھی اگر دونوں کو ہی ایڈ پار کرنا چاہیے, یہ بار کو چاہیے کہ سجیشن دے ابھی جو بجٹ آئے کہ جس طرح سیل ٹیکس میں کمشنر کے آرڈر کے خلاف اپیل ٹرائبونل میں ہوتی ہے تو یہاں انکم ٹیکس میں بھی ایسے ہی ہونی چاہیے, فیڈرل ایکسائز میں بھی ایسے ہی ہونی چاہیے, اور اسی طرح کسٹم میں بھی ایسے ہی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے ہائر اتھارٹی ہے تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ایپلیٹ فورم میں جانا ہے تو ہائر اتھارٹی کے پاس جائے. تو اس لیے ویسے بھی کیونکہ انکنسسٹنسی ڈفرینٹ لا میں ڈفرینٹ ہو تو ایک جیسے, کیونکہ یہ پروسیجر لا ہوتے ہیں, ریمیڈی آف اپیل جو ہے جو آرڈر ہوتا ہے تو ساروں میں کنسسٹنسی اور سرٹینٹی وہ سسٹم ہونا چاہیے. تو اس دفعہ جو ہے بجٹ آ رہا ہے اس میں یہ دے دینی چاہیے کہ اس کو بھی کلیریفائی کر دیا جائے کہ لوور دین دا ڈی سی یا اس لیول کی جو ہو وہ اپیل فائل ہو ٹو دا کمشنر, اور کمشنر یا اس سے اباؤ کوئی ہو تو یا ایڈیشنل کمشنر ہو تو وہ فائل ہو ٹو دا ٹرائبونل. انکم ٹیکس میں بھی وہاں بھی اور اپروپریٹ امینڈمنٹ اکارڈنگلی کر دی جائے. کمشنر اپیل کے پاس جانا تھا, وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 40B میں جو لکھا ہوا بائی اینی آفیسر ان لینڈ ریونیو, جب آپ ان لینڈ ریونیو کی جا کے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو اس میں کمشنر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جو 46 میں لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے؟ کمشنر اینی آرڈر پاسڈ بائی کمشنر تھرو ایڈجوڈیکیشن اور انڈر اینی پروویژنز آف دی ایکٹ. یا اس سے زیادہ اور کیا کلیئر ہو سکتا ہے؟ تو سیکشن جو 11 ہے ایڈجوڈیکیشن کا سیکشن نہیں ہے, تو ایڈجوڈیکیشن ہے کہ اینی آرڈر پاسڈ بائی دا کمشنر تھرو ایڈجوڈیکیشن. اور کیا ہونا چاہیے؟ جب لا نے اسپیسیفکلی اپیل کی دے دی آپ کو تو اب اس سے زیادہ اور لا کلیئرٹی کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ ڈائریکٹ ٹربیونل میں جائیں, کیوں کیسے کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟
वो ट्रिब्यूनल ये नहीं कह सकता कि आप पहले कमिश्नर से होके आए, वो एनी अथॉरिटी उन्होंने कहा वो भी है, मुझे चाहे तो मैं वहां से हो जाके आ जाऊं, फिर भी नहीं आप इतराज कर सकते, क्योंकि एनी ऑफिसर जो कहा गया है तो ऑफिसर में सारे ही शामिल हैं, तो मैं चाहे तो उधर से होके आ जाऊं, ये यहाँ भी लिखा है इधर भी कहा है, क्योंकि कमीशन अगर दोनों को कलेक्टिवली हम रीड करें तो इट मीन एनी अथॉरिटी अदर देन कमिश्नर है। कलेक्ट हमेशा लॉ को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हर सेक्शन को सेपरेटली नहीं पढ़ना, सारों को कलेक्टिव मिला के पढ़ना है। अब अगर कलेक्टिव रीडिंग करें तो कलेक्टिव रीडिंग से ये पता चलता है कि एनी अथॉरिटी का मतलब अदर देन कमिश्नर है, लोअर देन कमिश्नर है, क्योंकि कमिश्नर के लिए सेपरेटली 46 में अपील दे दी कि ये ट्रिब्यूनल में जानी है, तो अब इट मींस कलेक्टिवली पढ़े तो कमिश्नर की अपील लोअर नहीं जानी है, और जितनी अथॉरिटी लोअर देन कमिश्नर है वो नीचे जानी है। तो सही इंटरप्रिटेशन भी करें तो इसके मुताबिक भी लोअर देन कमिश्नर दोनों को बुला के पढ़े सेक्शनों को, लोअर देन कमिश्नर जितने भी एनी ऑफिसर ऑफ सेल टैक्स अथॉरिटी है वो नीचे जानी है, और उस कमिश्नर या ऊपर वाला कोई करेगा तो वो ट्राइब्यूनल में जानी है। वो बोर्ड भी करता है तो वो भी कहाँ जानी है, वो भी ट्रिब्यूनल में जानी है, वो तो नहीं कमिश्नर अपील के पास कर सकते। ठीक है, हाँ क्या बोर्ड का ऑर्डर सब ट्रिब्यूनल में कैसे जाएगा? बोर्ड का कैसे जाएगा, कहाँ आप बता रहे हैं ना कि बोर्ड का ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल जा सकता है। तो ये इसमें बोर्ड वाला पढ़ लेना, उसमें क्या 46 में क्या लिखा हुआ है। हाँ देखो बोर्ड जा सकता है ना कि हम दे सकते हैं ना सर, मुझे खुद क्लियर नहीं है, मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में सर हम नहीं जा सकते। 46 में पढ़े ना, कुछ चीजों में नहीं जा सकते, रिव्यू में वहां रिट फाइल करना होती है, अपील प्रोवाइडेड नहीं होती, तो यहाँ जहाँ है ना हमें कोई मतलब नहीं, हम पढ़ लेते ना 46 को। तो एक सेक्शन है 45 का कुछ बोर्ड वाला भी, जहाँ बोर्ड आपके ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, जब रिव्यू करके बोर्ड के पास पावर्स होती हैं, सुन लेना पहले, सुनते थे बात। कोई भी ऑर्डर कमिश्नर ने, डीसी ने या किसी ने भी पास किया हो, अगर उसमें कोई इलीगलिटी उसमें हो, वैलिडिटी ना हो, तो उस आपके खिलाफ, और इसको कहते हैं रिकॉलिंग। जैसे सेक्शन आपका इधर है ना इनकम टैक्स ऑडिट में 122(5) है, इसी तरह इधर भी है, वहां एक 214B भी सेक्शन है, कस्टम में भी है, सारों में है, सारों में ये इसको रिवीजनल अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है। तो रिवीजनल अथॉरिटी अगर कमिश्नर या किसी भी लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को कमिश्नर भी कॉल कर सकता है और बोर्ड भी कॉल कर सकता है। जब बोर्ड या कमिश्नर उसको कॉल करे, उसकी लीगलिटी पे उसको कॉल करके उस पर फिर कोई और ऑर्डर पास करे जो उसको पावर दी गई है। यहाँ भी होगा 45B, ये कौन सा है? ये 45A है, ये पावर ऑफ बोर्ड एंड कमिश्नर, तो इसमें रिवीजनल उसको पावर दी गई है 45A। 45 जो B है वो अपील का है, उससे पहले 45A है, ये रिवीजनल पावर है, रिवीजनल पावर विद द बोर्ड या कमिश्नर। कमिश्नर या बोर्ड किसी भी रिकॉर्ड कर सकता है ऑफ एनी लोअर अथॉरिटी जिसमें उसने ऑर्डर पास किया हो और ऑर्डर में कुछ उसमें इलीगलिटी हो, तो उस सिचुएशन में उसको अपील फाइल ना की हो, टाइम फ्रेम है उसमें, उस सिचुएशन में वो ऑर्डर कॉल करके नया ऑर्डर पास कर सकता है। जब 45A में वो ऑर्डर पास करेगा तो अब वो कहाँ जाए अपील के लिए? अगर वो ट्रिब्यूनल नहीं जाना, लोअर कमिश्नर अपील के पास तो बोर्ड के ऑर्डर की पावर नहीं है कि कमिश्नर अपील सुन ले। ठीक, मैं ये मेंशन है ना, अभी पढ़ने लगे ना। अब यहाँ 45A में जो ऑर्डर पास होगा, कमिश्नर करेगा या बोर्ड करेगा, उसकी अपील लाई करती है 46 में बिफोर द, ये 45 पढ़ दें भी है? हाँ तो है ना, यही मैं कह रहा था, यही कहा था। हाँ हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। एनी पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिसर एंड लैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द एडिशनल कमिश्नर एग्री ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड। नंबर 1, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील, कमिश्नर अपील वाला ऑर्डर पास करेगा तो उसकी अपील एक जानी है। दूसरा, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू थ्रू एडजुडिकेशन और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल फ्रेम्ड। तीसरा, सी है द बोर्ड अंडर सेक्शन 45A में विद इन 60 डेज। अब बोर्ड के हैं? नहीं, ऊपर ऑर्डर बोर्ड ने किया है ना, कंटिन्यूटी एनी ऑर्डर पास बाई। अब बोर्ड किया है तो वो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं।
बोर्ड ने अगर आर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 45A, जो कि लोअर अथॉरिटी के रिकॉर्ड को कॉल करके ऑर्डर पास कर सकता है, जब उसने कोई ऑर्डर पास किया है तो आपको लेजिस्लेटर ने राइट दिया है कि उसके खिलाफ आप अपील कहाँ लेके जाएं, बिफोर द ट्राइब्यूनल। ये है 45 का C, ठीक है, विद इन टाइम जो भी फ्रेम किया है, ठीक है। ये नहीं बोर्ड अपने ही ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं बोर्ड ने ऑर्डर पास किया है, नीचे वाले ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर किया है या कहा है ये गलत, तो और खुद ही अपील में चला जाए ट्रिब्यूनल के पास। आपने क्लियर ये कर दिया 3 ऑर्डर सुन किया होगा वो वाला के खिलाफ, मैं सुन 3 ऑर्डर जो है दैट इज अपीलेबल बिफोर द ट्राइब्यूनल। नंबर 1 ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर अपील, जहां आपने कमिश्नर अपील के उसके सामने अपील फाइल की है तो वहां वो कोई ऑर्डर पास करता है, यू कैन गो टू द ट्राइब्यूनल। नंबर 1 कमिश्नर जो है हायर देन जो DC AC है, उसने कोई ऑर्डर पास किया हो तो वो आप डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। उसके खिलाफ 45A में किया हो या किसी और सेक्शन में या 11 में या किसी में भी किया हो, कमिश्नर का कोई भी ऑर्डर हो अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कहीं भी कोई उसने ऑर्डर किया है, ब्लैक लिस्टिंग ये वो जहां कहीं भी आपने किया है तो यू कैन गो। आप ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करते ट्राइब्यूनल में, तो वो उसको आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि आप नीचे से रूट हो। आप इंटरप्रिटेशन के एक के तहत जा भी सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट दोनों को कलेक्टिव रीड करें और जो मेरी ओपिनियन है उसके मुताबिक आपने यू हैव टू गो डायरेक्टली टू द ट्रिब्यूनल। तीसरा है कि आपने बोर्ड ने अंडर सेक्शन 45A जो है कि वो कॉल कर सकता है रिकॉर्ड और लोअर अथॉरिटी के ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर करके नया कोई ऑर्डर पास करता है, वो कोई ऑर्डर का पास करता है बोर्ड, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट दैट ऑर्डर अकॉर्डिंग विद ट्राइब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल हायर देन बोर्ड समझा जाता है जुडिशियल फोरम, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, 1 साल तक कर सकता है किसी हाँ, की, तो आगे बोर्ड में बोर्ड में करते हैं, बोर्ड अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर हम डायरेक्ट ट्राइब्यूनल जाएंगे। नहीं, यहाँ क्योंकि स्पेसिफिक सेक्शन है, वहां रिट फाइल होगी, वहां ऑर्डर नहीं है। जहां रेमेडी ऑफ अपील, जहां ये लेजिस्लेटर की पावर होती है कि किसी एक्शन के खिलाफ रेमेडी, स्टैचुटरी रेमेडीज को कहते हैं, वो दे या ना दे, ये जनरल नहीं है कि हर एक ऑर्डर एक बोर्ड का जी आप उसकी अपील ट्रिब्यूनल के पास फाइल करेंगे। अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि इसकी रेमेडी ऑफ अपील इस फोरम के पास है और इस सेक्शन की, तो देन यू विल गो टू दैट फोरम, पहले वो एंजॉय करेंगे, फिर आगे अल्टरनेटिव रेमेडी आप अवेल करेंगे। अब यहाँ क्योंकि लिख दिया गया है कि बोर्ड का अंडर जो है 45A है, तो इट मीन 45A ही है, उसके अलावा वो 74AB में जो ऑर्डर करेगा वो इसमें फाल नहीं करता। उसके खिलाफ क्या होगा, उसके बाद अदर रेमेडीज हैं। अदर रेमेडी क्या है, रिट आप फाइल कर सकते हैं आप, या FTO जा सकते हैं, या कोई और सिविल कोर्ट की वो भी रेमेडी की स्पेशल सिचुएशन में हो सकती है, ठीक है, वो उसमें नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ। लॉ को पहले लेटर ऑफ लॉ जो है उसको देखने, अगर इधर लिखा होता कि जिस तरह कमिश्नर के साथ लिखा हुआ है कि ऑर्डर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, आप कमिश्नर के ऑर्डर कहीं भी उसने पास किया तो आप जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 45A। क्लियर कर दें, यहाँ पर लिखा है एनी ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर और वहां पर इनलैंड रेवेन्यू लिखा है ऑफिसर, वो जो मेन सेक्शंस हैं उसमें तो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन दे दी, उसमें कमिश्नर भी फॉल करता है। जी, जी। अब यहाँ पर है कि एडजुडिकेटेड हो बाय कमिश्नर, यहाँ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। नहीं, इसलिए अगर यहाँ इनलैंड लिख देते तो ये भी डायरेक्ट अपील हो जानी थी ट्राइब्यूनल में। तब अब दोनों को पढ़ाएं तो वहां लिखा हुआ है ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू से मुराद जितनी भी अथॉरिटी स्पेसिफाइड हैं, वो अंडर सेक्शन जो आपका 30 है, 30 में काफी सारी हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, ये वो सारे ही हैं, तो इट मीन सारों के ऑर्डर जो है कमिश्नर अपील के पास जाने हैं। लेकिन अगले ही सेक्शन में जब उसने कह दिया कि कमिश्नर का कोई भी ऑर्डर अंडर एनी सेक्शन होगा तो ट्राइब्यूनल में जाना है, दोनों को मिला के पढ़े तो इससे क्या नतीजा अक्सर हुआ कि कमिश्नर से लोअर वाले सारे अपील इधर होनी है और कमिश्नर से ऊपर वाले बोर्ड में जानी है, इधर जानी है ट्राइब्यूनल में। दोनों को अगर इकट्ठा कलेक्टिव रीडिंग करें तो उससे ये नतीजा अक्सर होगा कि जो कमिश्नर होगा अथॉरिटी में कमिश्नर सेंटर में फाल करता है, तो आप अथॉरिटी को सारी को देखें तो अथॉरिटी में सेंटर वाले को जब कह दिया गया, सेंटर वाले को कह दिया गया कि इसकी अपील ऊपर होनी है,
तो नीचे उससे नीचे वाले का जो ऑर्डर होगा, जो लोअर अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, तो वो वहां तक रह गया कि वो अपील इधर होनी है, और उससे कमिश्नर या उससे ऊपर वाले हैं वो उधर होनी है। ठीक है, अब बोर्ड का भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, बोर्ड का कह दिया कि इस सेक्शन के तहत अगर बोर्ड ने ऑर्डर पास किया तो वो भी कमिश्नर अपील के पास नहीं जाना, कहाँ जाना है, वो डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में जाना है। इसलिए लॉ को, ये बेसिक फंडामेंटल इंटरप्रिटेशन का रूल है कि लॉ शुड बी रीड एज ए होल, इन बाइट एंड पीसेस में नहीं करना, कलेक्टिवली उसको, क्योंकि स्कीम एज ए कलेक्टिव चलती है, एक सेक्शन, सब सेक्शन, प्रोविजन दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अपील के ये जो जितने भी हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो पहले आ रहा है, पहले लेटर ऑलवेज प्रीवेल द अर्लियर, जो लेटर लॉ होता है या वो लेटर ओपिनियन होती है। इस तरह सीक्वेंस में जो चीज बाद में आती है वो ज्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू अर्लियर। अर्लियर में उसने सारों के खिलाफ कह दिया अपील, आगे आगे कह दिया नहीं इसकी उधर जानी है, इट मीन उसे लोअर वाली उधर जानी है। ठीक है, इस तरह कानून जो है एज ए होल की जो है, और कोई चीज भी रिडंडेंट नहीं है, लेकिन एज ए होल फिर उसकी कंक्लूड आप निकाल सकते हैं। क्लियर जी? हाँ जी, इसमें और कोई